Hello, IIT JEE aspirants. How are you guys doing? I welcome you to the platform of Infinity Vision. This is a course on coordinate geometry. This is lecture number 6. As you know, we have already covered 5 lectures, and that we have finished basic of coordinate geometry, and we have started working on straight line. As you know, this course coordinate geometry is very important as far as IIT JEE syllabus is concerned, not only from the perspective of weightage, but also from the perspective that this course works as a foundational and fundamental for courses like calculus, complex number, vector, and 3D. So we need to grasp this course right from its neck. So we have to grasp everything, every small little thing. We have to focus on every small little nuances and details. So before we begin, as you know, in the last 2 lectures, we have been dealing with a lot of theory, a lot of results, a lot of derivations, and a lot of geometrical properties. So in this lecture number 6, we will be doing a lot of problem solving. Before we begin this lecture, let me take a quick recap. I'll just be talking about the big ideas we have covered in basic coordinate geometry. We started our journey with Cartesian plane, then we talked about the point, then we talked about abscissa ordinate, then we talked about the distance formula, then we talked about the section formula, then we talked about centroid, we talked about in-center, we talked about Euler line, then we talked about the area of triangle and area of polygon, then we talked about slope, then we talked about an amazing portion that is locus, which is the foundation, which is the keel, which acts like a keel of a ship for the course like coordinate geometry. We understood what is locus, and in mathematics how we can, in what different ways we can represent any locus. We learned about geometric locus, we learned about algebraic locus, we learned about parametric locus. We also learned how to go from parametric to algebraic, then we learned how to go from algebraic to parametric, then we learned about how to go from geometric to algebraic. We talked about the steps that let the moving point be h comma k, apply all geometrical conditions, use new variables, the total number of equations should be one more than the number of variables, and then you have to find the relation between h and k, then replace h with x and k with y. And then we talked about how to go from algebraic locus to geometric locus. We talked about that means just sketching the curve, sketching some basic curves. So we talked about some basic curves, and we also know that this is going to be an evolving process. We also talked about a lot of transformation, that how to transform from y is equal to fx to y is equal to f of minus x, how to transform from y is equal to fx to y of f of x minus a, x plus a, y को y plus a, y को y minus a, x को kx, y को ky, इन सब का हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, if you remember. After that, we officially started our straight line chapter. Before we begin our straight line, we talked about the collinearity. आपको पता है किसी भी 3 पॉइंट को कोलिनियर करने के लिए हमने 3 अप्रोचेस की बात की थी. पहला अप्रोच था डिस्टेंस फॉर्मूला. आप ए बी सी 3 पॉइंट है जिसको आपकी कोलिनियरिटी चेक करनी है, तो आप ए बी का लेंथ निकालो, बी सी का लेंथ निकालो और ए सी का लेंथ निकालो. इनमें से कोई भी 2 जोड़ के तीसरा बन रहा है, किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर है, तो हम कहेंगे ये तीनों कोलिनियर है. नहीं है तो हम कहेंगे ये नॉन कोलिनियर है. दूसरा अप्रोच था एरिया वाला, कि हम इन तीनों को नॉन कोलिनियर पॉइंट एज्यूम करते हुए ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. अगर वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के अगर एरिया 0 आता है तो इट मींस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर है. तीसरा एस्पेक्ट था स्लोप का, जिसमें हमने सीखा था किसी भी 2 पेयर का ऑफ पॉइंट का स्लोप निकालो. अगर सेम है तो वो कोलिनियर होगा, सेम नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा. इस चीज को समझने के बाद हमने समझा था कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 बहुत खास चीज चाहिए होता है, एक पॉइंट और एक स्लोप. जिस तरीके से सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर और रेडियस चाहिए होता है, पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए हमें एक्सिस और वर्टेक्स चाहिए होता है, उसी तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एक पॉइंट और स्लोप चाहिए होता है. इस कॉन्सेप्ट को समझ के हमने 6 फॉर्म्स की बात की थी. एक था पॉइंट स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसा कि जो सबसे पहला फॉर्म था y इज इक्वल टू mx plus c. if you remember, y is equal to mx plus c, जिसमें आप कह सकते हो कि स्लोप क्या है, m है, और c क्या है, ये y इंटरसेप्ट है विच इज 0, c. दूसरे में हमने बात की थी, दूसरे फॉर्म की जो बात की थी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1. इसका क्या मतलब होता है,
ये होता है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। ये क्या है? ये आपका स्लोप है m, और पॉइंट क्या है? x माइनस x1 था, x1 कॉमा y1। सिमिलरली थर्ड फॉर्म की हमने बात की थी। थर्ड फॉर्म क्या था? 2 पॉइंट फॉर्म, इफ यू रिमेंबर, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये क्या था? ये आपका था 2 पॉइंट फॉर्म। दिस वाज 2 पॉइंट फॉर्म। कौन से 2 पॉइंट से पास कर रहा है लाइन? x1 y1 एंड x2 y2, इस 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। उसके बाद हमने बात की थी जनरल फॉर्म की, दैट वाज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें खास बात क्या थी? इसमें खास बात ये थी कि dy बाई dx या स्लोप इसका क्या होगा? माइनस a बाई b, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। उसके बाद हमने बात की थी फिफ्थ फॉर्म की। व्हाट वाज द फिफ्थ फॉर्म? Fifth form was intercept form, x by a plus y by b is equal to 1. This form is valid only when the x intercept and y intercept is non-zero. अगर x intercept और y intercept non-zero है तो ये form होता है। What happens when both of them is zero? It means that line is passing through origin, y is equal to mx. What happens if a is 0 and b is not 0? Then it means line is y is equal to b. And what happens when a is not 0 but b is 0? It means the line is x is equal to a. This is how you have to keep in mind. Many people say that we cannot say that what about the intercept? When we say b is equal to 0, it doesn't mean the intercept is 0. It could also be like that the intercept is something. So lot of contradiction is there, but you have to understand कि इन तीनों केसेस को, इन चारों केसेस को कैसे समझना है। उसके बाद सिक्स फॉर्म क्या था? आपका नॉर्मल फॉर्म था। नॉर्मल फॉर्म में क्या था? नॉर्मल एक लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है लाइन सेगमेंट? ये ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इसके लेंथ को p कहते हैं। तो अगर नॉर्मल p है और ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट नॉर्मल अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, अल्फा जो लाइन एंगल होगा वो 0 से 2 पाई तक, याद रखिएगा स्लोप 0 से पाई तक होता है, ये 0 से 2 पाई तक जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से पाई बाई 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पाई बाई 2 से पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई से 3 पाई बाई 2 और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो जो भी एंगल होगा वो कॉस और साइन अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है। तो नॉर्मल फॉर्म हमने क्या सीखा था? x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। इसमें जो p होता है वो क्या होता है? वो लेंथ ऑफ द नॉर्मल होता है, विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। लास्ट फॉर्म हमने बात की थी पैरामेट्रिक फॉर्म की। पैरामेट्रिक में मैं आपको बार बार कहता हूँ पैरामीटर पता होना चाहिए। तो आप कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हो और ये पॉइंट x1 कॉमा y1 होता है और लेट्स से द स्लोप ऑफ दिस लाइन, एंगल ऑफ द स्लोप इज थीटा, तो अगर आप ऊपर जाते हो r यूनिट तो आप पैरामीटर r कह सकते हो, और नीचे जाते हो r यूनिट तो फिर भी कह सकते हो पैरामीटर r। लेकिन ऊपर जाने पे आप पॉजिटिव लेते हो, नीचे जाने पे आप नेगेटिव लेते हो, चाहे लाइन का जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज की ना हो। तो r हमेशा ऊपर जाने में पॉजिटिव होता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? आप x को लिखते हो x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। इसमें थीटा क्या है? कांस्टेंट है। डोंट से थीटा इज द वेरिएबल, थीटा इज द पैरामीटर। इसमें पैरामीटर क्या है? मैंने आपको याद होगा मैंने पैरामीट्रिक लोकस में बताया था पैरामीटर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये r है तो r पैरामीटर है जिसे हम साइन डिस्टेंस कहेंगे, साइन डिस्टेंस कहेंगे, डिस्टेंस विथ अ साइन, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो इसकी बात करेंगे। उसके बाद जो हमने बात की थी एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर L1 और L2 दो लाइन है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो अगर मुझे दोनों के बीच में एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल, तो मैं मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हमने बात की थी, प्रूव भी किया था। तो ये हम ऐसे निकालेंगे। अगर हमें पता चलता है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, L1 इज L2, तो इसका मतलब है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, tan 90 नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब 1 प्लस
m1 m2 क्या है 0। तो जब भी आपको पता चलता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा -1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। आपको पता चलता है लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है m1 इज इक्वल टू m2। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों तरफ के लिए सही है, इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड अपॉन, मतलब if line 1 is perpendicular to line 2 then m1 is equal to m1 into m2 is -1, if m1 into m2 is -1 then line 1 is perpendicular, but this is not implied upon। अगर line 1 is parallel to line 2 तो definitely m1 is equal to m2, लेकिन if m1 is equal to m2 तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ चुके हैं। एक हो सकता है line 1 is parallel to line 2, दूसरा हो सकता है line 1 is coincident with line 2, coincident with line 2। ठीक है, उसके बाद चलिए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में रिवाइज कर ली, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने 31 क्वेश्चन को टच कर रखा है, तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 32। आई विल रीड आउट दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज ABCD इज अ स्क्वायर। द क्वेश्चन इज ABCD इज अ स्क्वायर such that the coordinate of A is 8, 0 and coordinate of C is 0, 4। So A और C का coordinate दे रखा है which are basically the opposite ends, basically ये diagonal है AC, है ना। ABCD अगर आप स्क्वायर देंगे तो definitely A और C opposite vertices होते हैं, diagonal बनाते हैं। y coordinate of B, दूसरा इंफॉर्मेशन है y coordinate of point B is greater than y coordinate of point D। ये इंफॉर्मेशन दिया है और आपको निकालना है फाइंड ऑल स्लोप्स ऑफ साइड्स एंड डायगोनल्स, साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर ABCD। इस क्वेश्चन को अटैक करने से पहले हमें थोड़ी सी बचपन की क्लासेस में जाना होगा और हमें समझना होगा कि भैया ये स्क्वायर होता क्या है, ये स्क्वायर होता क्या है। तो जल्दी से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा स्क्वायर है चुटकू सा। लेट्स अभी क्या कहते हैं, हम ओरिएंटेशन पे नहीं जाएंगे, अभी बस हम फोकस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है। हम इसे मान लेंगे A विच इज़ 8, 0 और इसे मान लेंगे C विच इज़ 0, 4, राइट। और y कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये हो गया आपका B और ये हो गया D, क्योंकि लिखा हुआ है y कोऑर्डिनेट ऑफ B इज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो मतलब B D से ऊपर है। ठीक है, बिफोर वी अटैक दिस प्रॉब्लम आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, एक रोम्बस होता है। स्क्वायर क्या होता है, एक रोम्बस होता है जिसके चारों एंगल्स बराबर होते हैं। तो मतलब आपको ये पता चल चुका है कि ये और ये 90 डिग्री पे होता है, राइट। तो आप ये कह सकते हो, और स्क्वायर पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो अगर स्लोप ऑफ MAD, अगर मैं MAD का स्लोप कहूं M1 तो इसका स्लोप क्या होगा M1। वाई, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC। अगर मैं कहूं स्लोप ऑफ MAB इज M2 तो इसका स्लोप क्या होगा M2। तो ये क्या हो गया M2, क्योंकि MAB और MCD बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दे आर पैरेलल लाइंस, बिकॉज एक स्क्वायर है। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है स्क्वायर के बारे में, आपको पता है स्क्वायर रोम्बस होता है तो उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, उसके डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो लेट मी ड्रॉ वन डायगोनल AC एंड लेट मी ड्रॉ अनदर डायगोनल। ठीक है, अब आप देखिए, अब जो मैं तीसरी चीज आपको बताने जा रहा हूं, स्लोप ऑफ MAC। स्लोप ऑफ MAC को मैं M3 कह रहा हूं, इसके स्लोप को क्या कह रहा हूं M3। और स्लोप ऑफ MBD को मैं क्या कह रहा हूं M4। देखिए गौर से देखिए क्या हो रहा है,
अब आप देखिए, आपको बेसिकली निकालना है M1, M2, M3 और M4। अब आपके पास क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, एक चीज और आपने मिस कर दी, क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। और डायगोनल्स क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर। रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो ये क्या हो गया, π/4 या 45 डिग्री। ये क्या हो गया, π/4 और 45 डिग्री। तो सबसे पहले बात आप बताइए कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। तो इसका मतलब क्या है, ए बी का स्लोप और ए डी का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, क्योंकि दो लाइन का अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। एम ए बी क्या है, M2, और एम ए बी क्या है, M2, और एम ए डी क्या है, M1। M2 इंटू M1 इज -1। तो ये आपको ध्यान में रखना है, M1 इंटू M2 इज -1। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पता है BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो BD इज परपेंडिकुलर टू AC का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ BD एंड स्लोप ऑफ AC का प्रोडक्ट -1 होगा। तो स्लोप ऑफ AC क्या है, M3, और वो क्या है, M4। सो M3 इंटू M4 इज ऑल्सो -1। ये दो इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी होगी। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि ये देख सकते हैं आप कि AB और AC के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, π/4, और AD और AC के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, π/4। तो आप ये कह सकते हो कि साइड्स एंगल बिटवीन sides and diagonal in a square is π/4। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ज्योमेट्री बचपन से पता है। अब आते हैं स्लोप निकालने का। तो MAC पहले निकाल देते हैं। ये दोनों पॉइंट दे रखा है, MAC बेसिकली क्या है मेरा, M3 निकाल देते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट्स या किसी लाइन सेगमेंट का या किसी दो पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, राइज ओवर रन, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। y1 4 है, y2 0 है, तो 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 8। देख लीजिए, 4 माइनस 0, 0 माइनस 8, क्या निकल के आया, -12। सो M3 मेरा निकल के आ गया -12। सो डायगोनल एक आंसर तो मेरा निकल के आ गया। मुझे M1, M2, M3, M4 चाहिए, तो M3 निकल के आ गया। उसके बाद मुझे पता है M3 इंटू M4 -1 है, तो M3 इंटू M4 क्या है, -1। तो यहां से M4 निकल के आ गया मेरा 2। दो आंसर मेरा निकल के आ गया। तो ये सबसे आसान पार्ट था। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे स्लोप ऑफ M2 और M1 चाहिए। तो मुझे पता है कि AC मेक्स 45 डिग्री विथ साइड्स। तो साइड का स्लोप, एक साइड का स्लोप मान लीजिए M ले लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर क्या मान लीजिए, M मान लीजिए, एंड स्लोप ऑफ MAC क्या है, M3 which is -12। So angle between AC and side is π/4। तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan π/4 इज इक्वल टू मॉड, tan π/4 इज इक्वल टू मॉड। चलिए ये मान लेता हूं M3 और इसको मान लेता हूं M। तो क्या कहूंगा, M3 माइनस M अपॉन 1 प्लस M3 इंटू M। tan π/4 क्या होता है, 1। M3 क्या है, M3 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, क्या है, -12। और ये क्या है, -M, और ये क्या है, 1 प्लस -12 इंटू M। तो देखिए क्या आ गया, -M -12 अपॉन 1 - M/2।
सिंस दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे मॉड लगा हुआ है तो मैं ये कर सकता हूँ मॉड ऑफ 1 माइनस एम बाई टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एम माइनस हाफ। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, आपको पता है मॉड ऑफ ए बाई बी को आप कह सकते हो मॉड ए अपॉन मॉड बी, कोई दिक्कत नहीं है इस ऑपरेशन में, है ना। मॉड ए इंटू बी को आप कह सकते हो मॉड ए इंटू मॉड बी, कोई दिक्कत नहीं इस ऑपरेशन में। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए या तो एक बार प्लस माइनस लगा दो या आप इसको स्क्वायर अप कर दो। स्क्वायर कर देते हैं, सो 1 माइनस एम बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर देते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 4 माइनस एम। ठीक है, इसको कर देते हैं एम स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 प्लस एम। अब क्या करें, सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक को, तो क्या बन गया 3 बाई 4 एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो m क्या हो गया माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 64 प्लस 36 बाई 6। सो माइनस 8 प्लस माइनस 10 बाई 6, तो हो गया एक माइनस 3 और दूसरा हो गया 1 बाई 3। सो डेफिनेटली एक लाइन का स्लोप माइनस 1 बाई 3 होगा और एक 1 बाई 3 होगा। सो डेफिनेटली आप ड्रॉ करके देखोगे तो ये आपका नेगेटिव स्लोप हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे। तो आप कह सकते हो स्लोप ऑफ साइड्स आर क्या निकल के आया -3 एंड 1 बाई 3। तो आप जैसे अगर आप इसको ड्रॉ भी कर लोगे तो अब आप इसको ड्रॉ करके भी यहाँ से बता सकते हो, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। आपको पता है ये आपका A है, ये आपका C है, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दो और यहाँ से अगर आप यहाँ से ऐसे करके ये ले आओ। सो ये हो गया A, ये हो गया C। आप अपना स्क्वायर कंप्लीट कर दो, ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया B, ये हो गया D। सिंस ये इसका स्लोप माइनस हाफ था तो इसका स्लोप 2 हो गया। सिंस ये एंगल एक्यूट, ये एंगल अभी भी ऑब्ट्यूज है तो इसका स्लोप हो जाएगा -3, और ये सिंस ये एक्यूट बना रहा है तो इसका स्लोप हो जाएगा 1 बाई 3। तो इसका स्लोप 1 बाई 3, इसका स्लोप 1 बाई 3। इस तरीके से आप अपने आंसर को कर सकते हो। ठीक है, मैं डिटेल में आपको समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज आप इसको और जल्दी कर सकते थे। आइए क्वेश्चन 33 में चलते हैं। अगेन एक स्क्वायर दे रखा है, ABCD इज द स्क्वायर, ABCD is a square in XY plane. ABCD is a square in XY plane in first quadrant. ठीक है, A का क्वाड्रेंट दे रखा है, A का वर्टेक्स दे रखा है 8,0, इस बार B दे रखा है 0,4, मतलब इस बार एडजेसेंट साइड का वर्टेक्स दे रखा है। फाइंड ऑल स्लोप्स। ठीक है, पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा A 8,0 और B 0,4। स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है तो ये बन गया आपका स्क्वायर। रफ डायग्राम बना रहा हूं, घबराने का नहीं। ठीक है, ये आपका बन गया एक स्क्वायर। ए भी दे रखा है, आपको ऑल द स्लोप्स चाहिए। क्या चाहिए? ऑल द स्लोप्स। अगेन आपको पता है ये स्लोप और ये स्लोप बराबर होंगे, तो इसका स्लोप देखिए क्या है, इसका स्लोप अभी निकाला है 4 - 0 अपॉन, तो ये हो जाएगा हाफ, -हाफ। इसका स्लोप -हाफ है तो इसका स्लोप क्या होगा? -हाफ। ठीक है, ये आसान था।
ये क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या है 2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप 2 होगा। ठीक, अब आते हैं डायगोनल का स्लोप निकालने में। तो मुझे पता है ये जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा ये कितना बनाएगा, π/4 बनाएगा। 2 से ये बनाएगा π/4, तो इसका स्लोप मैं मान लेता हूँ m। अब मुझे m निकालना है, ठीक है, और इसका स्लोप मैं मान लेता हूँ 2। सो tan π/4 इज इक्वल टू मॉड m-2 अपॉन 1 + 2m। ठीक, इसको स्क्वायर कर दो, 1 + 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m-2 का होल स्क्वायर, तो 4m² + 1 + 4m इज इक्वल टू m² + 4 - 4m, तो क्या बन गया 3m² + 8m - 3। ठीक, निकाल दो क्या हो जाएगा, -8 ± b² 64 + 36/6, क्या बन गया -8 ± 10/6, सो हो गया -3 एंड 1/3। सो डेफिनेटली एक का स्लोप क्या होगा -1/3, और दूसरा जो डायगोनल होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा 3। ठीक है, ये मैंने जल्दी से दिखा दिया आपको करके कि आप अक्सर इतना टाइम नहीं लेंगे इसको सॉल्व करने में, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 34। Okay, you have a triangle ABC which is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. And angle A दे रखा है 120 डिग्री, तो डेफिनेटली दिस इज अ नॉन इक्वल एंगल। एंड साइड BC मतलब A के अपोजिट साइड, मतलब जो नॉन इक्वल साइड है उसका इक्वेशन दे रखा है y = 5x + 99। सो यू नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ अदर टू साइड्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन यू नीड टू नो द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। आप पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए, बना लेते हैं। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लीजिए, ये दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस एंगल को आप कह लीजिए A, इसको B, इसको C। ये आपका 120 डिग्री है। अब आप देखिए गौर से, ये जो स्लोप होगा दिस इज y = 5x + 99, इसका इक्वेशन दे रखा है। ये जो एंगल होगा बताइए क्या होगा, आपको पता है दोनों एंगल इक्वल होंगे तो 30-30 डिग्री, क्या होगा 30-30 डिग्री। तो मतलब AC और इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री का है, तो इसके स्लोप को मैं m मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ m। तो सिंस दोनों लाइन 30 डिग्री, तो ऐसे दो लाइन होंगे जो 30 डिग्री बनाएंगे, वही डेफिनेटली इसी दोनों का स्लोप कह रहा है। तो मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ AC इज m एंड स्लोप ऑफ दिस इज 5। तो आप कह सकते हो एंगल बिटवीन टू लाइन लगा सकते हो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू मॉड, अब इसका स्लोप क्या है 5 है, y = mx + c, इसका स्लोप क्या है 5 है कि नहीं, y = mx + c कॉन्सेप्ट से आप कह सकते हो स्लोप m होता है, तो आप इसका लाइन कह सकते हो 5। तो आप कह सकते हो 5 - m, मॉड ऑफ 5 - m अपॉन 1 + 5m। tan 30 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 5 - m का मॉड अपॉन 5m + 1। तो आप कह सकते हो स्क्वायर करके आप कह सकते हो 5m + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 5 - m का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 25m² + 10m + 1, और ये बन जाएगा m² + 25 - 10m। तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं, 25m² + 10m + 1, 3m² - 30m + 75, तो क्या हो गया 22m² + 40m - 74, which is 11m² + 20m - 37। ठीक है, सो देखते हैं हम निकाल के, -20 ± b² 400 + 4 × 37 × 11 अपॉन 22। देखिए क्या कैलकुलेशन आ रहा है, 37 × 11 is 407, 407 × 4 is 16, 28, 20, 28। कुछ नंबर का मिस्टेक है, आप कैलकुलेशन गंदा आ गया है, मीन्स मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर ले लिया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। tan 30 आपको पता है
1 by root 3 and 5 minus m upon 1 plus 5m, right? So you can say square it up. So 5m, 25m square plus 1 plus 10m is all right. And m square minus 10m, that is also all right. 3m square minus 30m plus 75, that's all right. 25m square, 22m square, 10 plus 30m, 1 minus 75, 74. So कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर थोड़ा गड़बड़ है तो वो दोनों जो स्लोप आएंगे, वो जो दोनों स्लोप आएंगे वो एक स्लोप इसके हो जाएंगे और एक स्लोप इसके हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों लाइन 30 डिग्री का इंक्लिनेशन रखता है अनइक्वल साइड से। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? सम ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स is 4 and it passes through 1, 1. Find the line. Find the line. अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको वो केसेस याद रखना होगा एक्स इंटरसेप्ट का। आप एज्यूम करेंगे एक्स इंटरसेप्ट को a which is not equal to 0 और y इंटरसेप्ट को b which is not equal to 0 और आप कहेंगे a plus b is equal to 4। तो आप इक्वेशन बनाएंगे x by a plus y by 4 minus a, क्योंकि b क्या है 4 minus a is equal to 1। So this is the equation you have composed। अब आप क्या करोगे? it is passing through 1, 1। ये 1, 1 को सेटिस्फाई करेगा, तो 1 by a प्लस 1 बाई 4 माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो इससे आप कैलकुलेट कर दो 4 माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए इंटू 4 माइनस ए। एलसीएम ले लिया मैंने, है ना? तो क्या बन गया 4 इज इक्वल टू 4a माइनस ए स्क्वायर। तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच मीन्स a इज इक्वल टू 2। तो a 2 आ गया तो b डेफिनेटली 2 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बाई 2 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये आपने केस लिया जब a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। आप एक दूसरा केस ले सकते हो, a इज इक्वल टू, आप जो केस मिस आउट किए हो कोई जरूरत नहीं है सही हो कि नहीं, लेकिन आप जरूर चेक कर सकते हो। a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 0 पे आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 4 इज द लाइन। इज इट पासिंग थ्रू 1, 1? नो, इट इज नॉट पासिंग, सो ये केस इनवैलिड। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 4। इज इट पासिंग थ्रू 1, 1? नो, सो दिस बोथ द केसेस रूल्स आउट। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, तो a प्लस b 4 होगा ही नहीं, तो ये वाला रूल आउट हो गया। तो द ओनली आंसर यू हैव इज x बाई 2 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। लेकिन x इंटरसेप्ट के क्वेश्चन में हमेशा सारे ऑल्टरनेटिव देख लेना, क्योंकि IIT JEE अक्सर इस पे टेस्ट करता है, बच्चे गलती कर जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सम ऑफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज 4 एंड पासेस थ्रू, इस बार पासेस थ्रू कर दिया है 1, 2। फाइंड द इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज कर दिया है। सो लेट्स चेक व्हाट इज डिफरेंट इन दिस प्रॉब्लम। सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा। तो फिर से हम ले लेते हैं a नॉट 0 मान लेते हैं, b नॉट 0 मान लेते हैं, तो x बाई ए प्लस वाई, a प्लस b क्या दे रखा है 4, तो b को आप लिख सकते हैं 4 माइनस a इज इक्वल टू 1। आप 1 बाई 2 निकाल सकते हैं, 1 बाई a प्लस 2 बाई 4 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 4 माइनस a प्लस 2a अपॉन a इंटू 4 माइनस a इज इक्वल टू 1। क्या बन गया 4 प्लस a इज इक्वल टू 4a माइनस a स्क्वायर। इधर आ जाइए, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो गौर से, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो। डिस्क्रिमिनेंट क्या है 9 माइनस 16 विच इज नेगेटिव, सो नो, सो ये नो सच वैल्यू एग्जिस्ट फॉर a, राइट। तो ये वाला केस इनवैलिड है, नो सॉल्यूशन आ गया है। दूसरा केस देख सकते हो कि a अगर, सेकंड केस देख लेते हो कि a अगर 4 है और b 0 है, तो इक्वेशन क्या होगा x इज इक्वल टू 4। क्या ये 1, 2 से पास करता है? नो, इट डजंट पास।
तीसरा केस क्या ले लोगे, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4, क्या y इज इक्वल टू 4 पास करता है? नो, इट डजंट पास, राइट। तो आप इस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 इस बार दे रखा है कि x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट। x intercept of a line is twice and passes through this, and this line also pass through 1/2. Find the equation of line. Find the equation of line. तो डेफिनेटली पहला तो हम वही करेंगे कि a और b दोनों को नॉन जीरो मान लेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, जिसमें आपको पता है a इज इक्वल टू 2b, क्योंकि x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे x/2b डाल देता हूँ प्लस y/b इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। अब क्या है, इट पासेस थ्रू 1/2, तो अब b की वैल्यू निकालने के लिए मैं पुट कर देता हूँ 1/2b प्लस 2/b इज इक्वल टू 1, तो b उधर चला जाएगा तो क्या बन गया 5/2, तो a क्या हो गया 5। सो इक्वेशन क्या बन जाएगा x/5 प्लस y/5/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, जो 1/2 से पास करेगा, 1/2 से पास करेगा, देख लीजिए 1/5 प्लस y है, सो 2/5 इंटू 2, देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज द आंसर। लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ये इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका जो x इंटरसेप्ट है वो ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ a 0 है और b 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ a स्टिल इज ट्वाइस ऑफ b, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, स्टिल वी कैन से दिस। तो हम इस केस को भी कंसिडर करेंगे कि अगर दोनों 0 है तो 0 इज डबल ऑफ 0। तो एक्चुअली मैथमेटिक्स में ये आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन IIT ने इस टाइप के सवाल पूछा है और बच्चे फंसे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि x इंटरसेप्ट अगर ट्वाइस की बात हो रही है तो डेफिनेटली दोनों 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, 0 इज ट्वाइस ऑफ 0 सेटिस्फाई करता है। तो आप कह सकते हो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू mx विच इज पासिंग थ्रू 1,2, और 1,2 से पास करने का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 2x। सो दिस इज ऑल्सो अनदर आंसर। तो बच्चे ये आंसर करके आगे निकल जाएंगे, वो निगेटिव पे आ जाएंगे, ये दोनों जो करेगा उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान में रखना होगा, तभी ये सवाल मैं आपको बार बार केसेस पे फोकस करा रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। लेट्स डू द क्वेश्चन 38। ड्रॉ अ लाइन whose y-intercept is 0, but x-intercept is not 0, है ना। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि a नॉट 0 है बट b 0 है, तो डेफिनेटली द लाइन इज x इज इक्वल टू a। तो आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एनी लाइन, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दो, दिस इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू a, पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू a, अगर नेगेटिव है तो ये आप कह सकते हो कि इट वुड बी एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है जहां पे मैं आपको फोकस करने को कह रहा हूं। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 39। स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन एज √3 एंड इट पासेस थ्रू 3,5, इसे क्या कहते हैं, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। तो बताइए क्या होगा आंसर, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म आंसर क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो आप सिंपल पुट कर सकते हैं, y1 की जगह 5, x1 की जगह 3 और ये √3। आप इसको कंप्लीट करना चाहते हो तो कंप्लीट कर दीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3x प्लस 5 माइनस 3√3। आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट मार दिया। बेसिक का सवाल था, इसलिए ऐसे ही पूछ लिया आपसे ताकि आपको स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म याद रहे। क्वेश्चन 40 देखते हैं। क्वेश्चन 40 इंटरेस्टिंग है।
एक ट्रायंगल ABC इज गिवन, वन ट्रायंगल ABC इज गिवन। ट्रायंगल ABC, मैं क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन लिख रहा हूं तो डोंट वरी, आपको लैंग्वेज, तो ट्रायंगल ABC डायग्राम ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना दे रहा हूं। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 11,19, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,-3 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,-5। उसके बाद एक लाइन बना रखा है AD, एक लाइन दे रखा है AD विच इज परपेंडिकुलर। AD आपका एक लाइन बना रखा है परपेंडिकुलर, और फिर एक मीडियन भी बना रखा है, AM इज मीडियन। सो यहां पे दे रखा है AM इज मीडियन। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये तीनों इंफॉर्मेशन दे रखा है। लिखा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और लिखा है AM इज द मीडियन, AM इज मीडियन टू BC, AM इज मीडियन टू BC। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ AD। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इक्वेशन ऑफ AM, और तीसरा इक्वेशन पूछा है एंगल DAM, मतलब ये एंगल थीटा। ठीक है, आपसे ये तीन चीजें पूछी गई है इस सवाल में। अब इस सवाल को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए आप बताइए। डेफिनेटली आपके दिमाग चलना शुरू हो गया होगा, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पता है M इज द मिड पॉइंट, तो 6-5 और 4-3 BC का मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 4 + 6 क्या होता है 10, 10/2 5, और -3 - 5 इज -8, -8/2 इज -4। तो M आपको मिल गया 5 - 4। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको निकालनी है वो ये कि आपको इक्वेशन ऑफ AD चाहिए और इक्वेशन ऑफ AM चाहिए, इक्वेशन ऑफ AD और इक्वेशन ऑफ AM चाहिए, राइट। तो इक्वेशन ऑफ AD कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। AD के बारे में समझिए, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ED इज परपेंडिकुलर टू BC। तो क्या मैं स्लोप ऑफ BC निकाल सकता हूं। स्लोप ऑफ BC देखिए क्या होगा, BC का स्लोप क्या होगा, -5 - -3, -5 - -3 अपॉन y1 - y2, 6 - 4। तो क्या हो गया देखिए, ये हो गया -2/2, राइट। ठीक है, विच इज -1। तो स्लोप ऑफ AD बता दीजिए क्या होगा, 1। तो मुझे स्लोप ऑफ AD पता चल चुका है, स्लोप ऑफ AD पता चल चुका है, और A जो पास कर रहा है वो किससे पास कर रहा है, 11,19 से पास कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट है, स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ AD क्या होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो आप कह सकते हो y - 19 अपॉन x - 11 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ AD। सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे इक्वेशन ऑफ AM पूछा है। A आपको दे रखा है क्या, 11,19, और M क्या दे रखा है, 5, M क्या दे रखा है, 5, राइट, यही निकाला था हमने, 5, तो आपसे इक्वेशन ऑफ AM पूछ रहा है, तो आप क्या लगाओगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे, क्योंकि 2 पॉइंट दे रखा है। सो y - 19 अपॉन x - 11 is equal to 19 - -4 upon 11 - 5. So this becomes your answer, 23/6. So this is your answer. Now the third thing they want to ask is how to find theta. Definitely आप इस डायग्राम में कह सकते हो थीटा ये आपका एक कंप्लीट एंगल है, और ये आपका 90 डिग्री है। So definitely theta is an acute angle. Theta is an acute angle. So you have to find acute angle between AD and AM. Acute angle between AD and AM. तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ AD देखता हूं क्या है। स्लोप ऑफ AD क्या है, देखिए स्लोप ऑफ AD इज 1,
स्लोप ऑफ ए एम क्या है बताइए, स्लोप ऑफ ए एम बताइए क्या है, दिस इज द स्लोप 23/6। सो अगर मुझे दोनों के बीच में एंगल चाहिए तो tan थीटा वुड बी मॉड ऑफ 23/6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 23/6 इंटू 1। तो क्या हो गया 23 माइनस तो क्या हो गया 17/6 अपॉन 29/6 which is 17/29. So theta is going to be tan inverse 17/29. This is your answer. ठीक है, नंबर्स पे ज्यादा परेशान मत होइएगा, नॉर्मली आसान नंबर्स आते हैं, क्वेश्चंस मैंने शायद ऐसे ही रैंडम कुछ नंबर्स पिक किए हैं अपने दिमाग से, तो इसलिए आपके नंबर्स थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रॉपर्टी की तरह है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए इसका रिजल्ट, लेकिन इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। Two lines cut coordinate axis at 4 points. Two lines cut coordinate axis at 4 points. ठीक है, two lines cut coordinate axis at 4 points show that these 4 points are concyclic. ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। If m1 into m2 is equal to 1, ये आपको एक प्रॉपर्टी की तरह भी देख सकते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे का अगर स्लोप रेसिप्रोकल है, देखिए -1 नहीं है, m1 into m2 is 1, तो वो जो दो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है वो कॉन्साइक्लिक होता है। कॉन्साइक्लिक मतलब वो चारों सर्कल पे लाई करते हैं। तो आप जो देख रहे हो गौर से, m1 क्या है, m1 इज स्लोप ऑफ l1 और m2 इज स्लोप ऑफ l2, तो दो लाइन कट कर रहे हैं। तो पहले एक डायग्राम ही बना लेते हैं, डायग्राम बना के ही इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो कार्टेशियन प्लेन कर लेते हैं, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो मैं आपके लिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, और मैं एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन 1, ठीक है, और एक ब्लू लाइन ड्रॉ कर देता हूं, लाइन 2, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है, अब क्या कहना है, शो दैट टू लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस कट एट 4 पॉइंट्स, दीज 4 पॉइंट्स विल बी कॉन्साइक्लिक इफ m1 into m2 is 1, ठीक है। तो पहले हम कॉन्साइक्लिक एज्यूम कर लेते हैं, दोनों वाइस वर्सा के लिए ट्रू है, तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि दे आर कॉन्साइक्लिक। तो अगर मैं ये पॉइंट कहूँ A, ये पॉइंट कहूँ B, ये पॉइंट कहूँ C, ये पॉइंट कहूँ D, उल्टा लिख लीजिए, इस पॉइंट को कहूँ C, इस पॉइंट को कहूँ D, और मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या है, ये चारों पॉइंट एक यूनिक सर्कल पे लाई करता है। तो मैंने एक सर्कल आपके लिए ड्रॉ कर दिया, तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल रफ डायग्राम है, सो इतना इमोशनल नहीं होना है, राइट। तो मैंने एक मान लिया कि ठीक है, चलो ये एज्यूम कर लिया कि ABCD आर कॉन्साइक्लिक। अब कॉन्साइक्लिक है तो इसका स्लोप मैं मान लेता हूं m1 और इसका स्लोप मैं मान लेता हूं m2, ये एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा, ये एंगल मैं मान लेता हूं बीटा, ठीक। नाउ इफ यू कनेक्ट A एंड D, आप A और D को कनेक्ट कर दो, ठीक है, आप A और D को कनेक्ट कर दो। तो अगर आप A और D को कनेक्ट करोगे, सो व्हाट यू कैन से, यू कैन से दैट ये कॉर्ड है, राइट, और ये कॉर्ड ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना रहा है इस पॉइंट से, और सेम कॉर्ड ये C पॉइंट से इंस्क्राइब्ड एंगल बना रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। क्या हो जाएगा, ये अल्फा, राइट। अब आपको पता है ये क्या है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, और ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, बीटा।
सो M1 क्या है, tan अल्फा, M2 क्या है, tan बीटा, और ये दोनों क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या होगा, M1 इंटू M2 क्या होगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, और tan अल्फा बीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1। सो आप ऐसे कह सकते हो। वाइस वर्सा भी प्रूव कर सकते हो। आप एज्यूम कर लो कि एंगल बीटा है, तो आप कह सकते हो ये एंगल बीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस बीटा होगा। सो 90 माइनस बीटा और अल्फा इक्वल तभी होंगे जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हों, तो वाइस वर्सा भी सही है। तो इट इज बोथ वे यू कैन प्रूव इट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपको अगर पता चलता है कि दो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, तो वो कॉन्साइक्लिक तभी होंगे जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट 1 होगा, या दो लाइन जिसके स्लोप का प्रोडक्ट 1 है, स्लोप का प्रोडक्ट 1 है, -1 नहीं, -1 परपेंडिकुलर होता है, तो वो जो 4 कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेंगे वो क्या होगा, concyclic. Concyclic means lying on one circle. So let's go to the next problem, question number 42. Again, it's an easy problem. A line with y-intercept as -5. Y-intercept line का क्या दे रखा है, -5. A line with y-intercept -5 makes 60 degree. This line makes 60 degree with another line which is 3x plus 4. Find its equation. Find its equation. तो अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये जो लाइन है इसको L1 कह लेता हूं, ये हो गया L2। ये जो लाइन L1 है इसका इक्वेशन निकालना है जिसका इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या है, -5, मतलब 0, -5 से ये पास कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ, 3x plus 4 के साथ। ओके तो पहले L1 मैं लिख देता हूं। L1 का स्लोप मैं मान लेता हूं m, जो हमें निकालना है, तो मैं इसको लिख देता हूं y इज इक्वल टू mx -5। ये कैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिख दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 1। लाइन 2 की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 3x plus 4। अब मुझे पता है क्या इंफॉर्मेशन, मुझे पता है इन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो किसी भी लाइन से, जैसे ये y इज इक्वल टू 3x plus 4 है, तो कितने लाइन एक्यूट एंगल 60 डिग्री बना सकते हैं, 2 लाइन बना सकते हैं, राइट। डेफिनेटली 2 स्लोप के लाइंस, एक 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ऐसे 2 लाइन हो सकते हैं। तो ऐसे 2 इक्वेशन होंगे जो, तो आपको m की 2 वैल्यूज निकल के आएगी। तो डेफिनेटली एंगल बिटवीन L1 एंड L2, एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज 60 डिग्री। L1 का स्लोप क्या है, m, L2 का स्लोप देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 3x plus 4, तो स्लोप क्या होगा, 3। L2 का स्लोप क्या है, 3। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू mod m minus 3 upon 1 plus 3m, and tan 60 is √3 is equal to mod m minus 3 upon 1 plus 3m। तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 3 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जल्दी से स्क्वायर कर देते हैं, 3 बाहर रखिए, 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m, राइट। और m माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m, राइट। सो क्या बन गया, 27m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9। सबको इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा 26m स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा 24m, और ये क्या बन जाएगा -6। सो क्या बन गया 13m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 3। 13 3 is 39। Okay, so what we can do, m is equal to -12 plus minus 144, 12 square minus plus 4 into 12 into 30 upon 26 minus b plus minus under root b square minus b 4 क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब 12 इंटू क्या हो गया, बी स्क्वायर 144 माइनस 12
ठीक है, तो 156 प्लस 144 क्या होता है 300, ठीक है, राइट राइट। सो -12 प्लस माइनस √300 अपॉन 26, सो 300 वुड बी 10√3, है ना, 100 बाहर निकल जाएगा, तो -6 प्लस माइनस 5√3 अपॉन 13, तो एक स्लोप आ गया -6 प्लस 5√3 बाई 13 और दूसरा स्लोप आ गया -6 माइनस 5√3 बाई 13। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, mx y इज इक्वल टू mx माइनस 5 है, सो दो लाइन हो जाएगा, एक लाइन होगा y इज इक्वल टू -6 प्लस 5√3 बाई 13 इंटू x माइनस 5, दूसरा लाइन होगा -6 माइनस 5√3 अपॉन 13 x minus 5. So both the lines make 60 degree with y is equal to 3x plus 4 with the intercept -5. Okay? कैलकुलेशंस देख रहे होगे, कैलकुलेशन से थोड़ा प्रो होना पड़ेगा जल्दी जल्दी करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 40, ये कौन सा क्वेश्चन था, 42 था, राइट? यस, लेट्स डू 43। कितना टाइम है? So we'll try to finish few questions fast. Okay, this is the last idea and then we'll call it a day. 43rd क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट A है 1,0, एक पॉइंट दे रखा है 1,0 और एक लाइन सेगमेंट है AB जिसका स्लोप है स्लोप इक्वल टू 1 और जो पॉइंट B है दैट लाइज ऑन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, फाइंड मॉड AB। आपको इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। क्या दिमाग में चल रहा है, देखो ये क्वेश्चन से ना मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं जो नया कॉन्सेप्ट इमर्ज करेगा, लेकिन इसको पहले कॉन्सेप्ट नॉर्मल तरीके से सोचते हैं। पॉइंट दे रखा है 1,0, आपके पहला दिमाग क्या चल रहा होगा कि 1,0 दे रखा है और स्लोप MB का क्या दे रखा है 1, तो इक्वेशन ऑफ AB निकाल दो। देखो मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ, मे बी ये प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है क्योंकि अच्छा प्रोसेस अभी आएगा, ठीक है। इस प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, ये लेंदी प्रोसेस है, आपको एक अचानक से क्विक प्रोसेस मिलेगा। देखते हैं, पहले लेंदी प्रोसेस से देख लेते हैं ताकि हम एग्जामिनेशन या अपने प्रोसेस प्रैक्टिस में हम दूसरे प्रोसेस को हैंडल करना सीखें। सो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इज 1, सो यू कैन से द लाइन इज y इज इक्वल टू x माइनस 1। A पॉइंट दे रखा है, B पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो मैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं y के बदले डाल देता हूँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो क्या हो गया 3x minus 2 is 3, so x is 5/3, so x आपका आ गया 5/3, तो y क्या हो गया 5/3 minus 1 2/3, तो b कोऑर्डिनेट आ गया आपका 5/3, 2/3। अब AB का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं। आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न मारूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भैया फंस गए इस प्रोसेस में। ये तो आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन IIT JEE आपको फंसाएगा कैसे, IIT JEE आपको फंसाएगा ऐसे। क्वेश्चन 44 देखिएगा कि एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूँ, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर दूंगा। A के बदले इस बार मैं डाल दूंगा पाई कॉमा E, A के बदले क्या डाल दिया मैंने पाई कॉमा E, फिर सेम डाला लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB। इस बार स्लोप में डालूंगा AB का क्या, पहले क्या डाला था, पहले डाला था 1, इस बार मैं डाल दूंगा आपको √3, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद मैं लिख दूंगा पॉइंट B लाइज ऑन। अब इस बार क्या, उसमें क्या डाला था मैं, बहुत ही सिंपल इक्वेशन डाला था x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब क्या डालूंगा, अब मैं डालूंगा √5x प्लस √7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड मॉड AB। अब देखिए पिछले सवाल और इस सवाल में क्या है, कोई फर्क नहीं है, सेम सवाल है, बस डेटा खतरनाक हो गया। 1,0 को पाई कॉमा E से रिप्लेस कर दिया गया, स्लोप 1 को √3 बना दिया गया और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 को √5x प्लस √7y प्लस 11 बना दिया गया। अब क्या करें, अब तो कैलकुलेशन भर गया है सवाल में, है कि नहीं। तो आप अगर ट्रेडिशनल वे में जाएंगे
तो आप करोगे y माइनस ई अपॉन एक्स माइनस पाई इज इक्वल टू √3. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी. और दूसरा इक्वेशन क्या है? √5x प्लस √7y प्लस 11. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, आपकी बैंड बच जाएगी, है ना. तो जितने सारे रैशनल नंबर्स है, और आईआईटी ऐसा ही सवाल देता है और आपको लगता है कि इतना कैलकुलेशन वाला सवाल दे दिया, लेकिन नहीं, आप इसको हैंडल कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपने एक और मेथड सीखा है. जब भी डिस्टेंस की बात हो, आप तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला सीधे आ जाता है आपके दिमाग में, लेकिन एक चीज आपके ध्यान में नहीं आता है, वो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म भी तो सीखा है जिसमें डिस्टेंस निकालना होता है, राइट. डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आपको ए और बी दोनों पॉइंट दे रखा है और आपको डिस्टेंस निकालना है, आप आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए. लेकिन अगर आपको पॉइंट और स्लोप दे रखा है, तो ऑलवेज यूज पैरामेट्रिक फॉर्म. तो आप आते हैं इस सवाल को, तो फिर से देखिए, मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूं. ये आपका लाइन है जिसका इक्वेशन दे रखा है y, इसका इक्वेशन दे रखा है √5x प्लस √7y प्लस 11, राइट. और आपको पॉइंट दे रखा है पाई कॉमा ई, और ये जो लाइन है, ये पॉइंट बी आपका इस लाइन पे लाई कर रहा है, और आपको ये लेंथ निकालना है जिसको मैं r कह दूंगा, और आपको स्लोप दे रखा है √3, मतलब थीटा क्या होगा? 60 डिग्री. तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म निकालोगे तो b का पॉइंट क्या लिख सकते हो? अगर आप इसको xy लिखोगे तो b होगा, x हो जाएगा पाई प्लस r cos 60 डिग्री, और y क्या हो जाएगा? e प्लस r sin 60 डिग्री, राइट. तो मुझे निकालना क्या है? मुझे r ही तो निकालना है, मुझे r निकालना है. अब आपको पता चल चुका है b पॉइंट क्या है. b पॉइंट है पाई प्लस r cos 60 कॉमा e प्लस r sin 60. ठीक है, लास्ट टाइम से बहुत ही आसान कैलकुलेशन है. और इक्वेशन क्या है? √5x प्लस √7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. मतलब b इस पे लाई कर रहा है, तो मतलब ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा. तो सेटिस्फाई करा दो, तो क्या हो जाएगा? √5 इंटू एक्स के बदले क्या डाल दोगे? पाई प्लस r cos 60 डिग्री, और इसको क्या डाल दोगे? √7 e प्लस r sin 60 डिग्री, और क्या होगा? प्लस 11 इज इक्वल टू 0. अब आपको देखने में डरावना सा लग रहा होगा, लेकिन आप बड़े आराम से कर सकते हो. आप सिंपल सी बात है, आप r को एक तरफ लिख दो. सो √5 cos 60 डिग्री प्लस √7 sin 60 डिग्री इंटू r, ये इधर आ गया, और इधर क्या हो गया? देखिए, माइनस √5 पाई माइनस √7e माइनस 11. अब देखिए r क्या हो गया? माइनस ऑफ √5 पाई प्लस √7e प्लस 11 अपॉन √5 cos 60 डिग्री प्लस √7 sin 60 डिग्री. अब ये आप समझ गए कि आप अगर आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो तो कितने जल्दी इसको सॉल्व कर दोगे और आप आगे निकल जाओगे बच्चों से. लेकिन अगर उस मेथड से फंसे रह गए तो आप कैसे बर्बाद हो जाओगे. 10-15 मिनट लगा दोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो देखने में आसान लग रहा है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला का आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दो डिस्टेंसेस की बात हो तो आप देखोगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है. अगर क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए. लेकिन अगर क्वेश्चन में पॉइंट एंड स्लोप दे रखा है तो ऑलवेज गो फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म. सो ये 44th क्वेश्चन में आई विल call it a day. नेक्स्ट क्लास में विल बिगिन विथ मोर प्रॉब्लम्स. एंड अब स्ट्रेट लाइन का जो मुश्किल एस्पेक्ट है, अब आई एम श्योर अब आप समझ रहे हो, धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है. तो अब आपको पुराने बेसिक्स को होल्ड करना बहुत जरूरी है. जितना स्ट्रांगली होल्ड करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स सीखोगे. ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर.